Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन अभी न्यू दिल्ली में हुआ? कहाँ पर हुआ? लोकेशन पूछी जाए तो मानेकशॉ सेंटर, जो कि अभी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिला। फिर आ जाता है कौन सा एडिशन था इसका, क्वेश्चन तो यही है। तो 16वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला आपके इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर का। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट विद DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 27 से 29 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, और लोकेशन हम देख ही चुके हैं, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। फिर ये जो इनॉग्रेट कराया गया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे, इसकी क्या थी? इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। राइट, आई रिपीट, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये आपकी थीम रहेगी इस अर्बन मोबिलिटी एंड इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की, जिसका 16वां एडिशन था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में, जिसका इवेंट हमें देखने को मिला। चलिए, और इसको इनॉग्रेट हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया अभी 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी लैंड को लॉस्ट कर चुका है ड्यू टू डिग्रेडेशन इन द लास्ट 4 ईयर्स। और इस डाटा की बात करें तो अराउंड 9.45% ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज डिग्रेडेड एज ऑफ 2019। दिस वॉज 4.42% इन 2015, और ऑलमोस्ट 9.45% इंडिया का लैंड मास 2019 तक डिग्रेड हो गया। अब डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है? अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। फिर डिग्रेडेशन होने का रीज़न हो जाता है आपका डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अर्बनाइजेशन, उससे आपकी जो नीचे की लैंड है उससे बहुत ज़्यादा आपकी अनफर्टाइल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। करेक्ट, ये डाटा रिलीज़ किया गया फिर किसके द्वारा? UNCCD के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। एंड इन्हीं के द्वारा यहाँ बताया कि ऑलमोस्ट 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंडिया की डिग्रेड हो गई बिटवीन 2015 से 2019 के बीच में। फिर यहीं पे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। यहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे नेचुरल तरीके से क्लाइमेट चेंज को
टैकल कर सकें। हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है टू एक्सटेंड द एरिया रिस्टोर्टेड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम 21 मिलियन टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बिटवीन 2020 से 2030। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज रिसीव्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलेंथ्रॉफी के लिए भी किनको ऑनर किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से? न्यू दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। ये है नीता अंबानी। नीता अंबानी हम जानते हैं ये स्पाउस है किनकी? मुकेश अंबानी की। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन के फिलेंथ्रोपिक आर्म की। इसी के अलावा याद रखेंगे नीता अंबानी को किसके द्वारा? USISPF, ये क्या है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जॉन चैम्बर्स, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जॉन चैम्बर्स एंड ये है नीता अंबानी। एंड नीता अंबानी जो अपना वर्क कर रही थी टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट, सपोर्टिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रमोटिंग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, करेक्ट, एंड डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंडिया, इनके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नीता अंबानी 2016 में वो पहली वीमेन बनी थी, पहली इंडियन वीमेन जिनको IOC का मेंबर अपॉइंट किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था 2016 में नीता अंबानी को। एंड यही वो रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। एंड इन्होंने 141st IOC सेशन को मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया था। ठीक है, फिर याद रखेंगे नीता अंबानी, इनको अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर फिलेंथ्रोपी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, हु वन बैलन डियोर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी? ये बैलन डियोर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फुटबॉल स्पोर्ट में। करेक्ट, यहाँ पे मेंस एंड वीमेन कैटेगरी की याद रखेंगे। मेंस कैटेगरी में तो जीता है लायनल मेसी ने, और वीमेन कैटेगरी में किन्होंने जीता है? वो है आइताना बॉनमाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फिर याद रखेंगे ये 67th एडिशन था आपका बैलन डियोर अवार्ड का, एंड लायनल मेसी ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। वेरेज अगर हम बात करें वीमेन बैलन डियोर अवार्ड की, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था और ये 5th एडिशन था वीमेंस बैलन डियोर अवार्ड का। वेरेज 67th एडिशन था ओवरऑल बैलन डियोर अवार्ड का, जिसमें से 8 बार, ये 8वीं बार लायनल मेसी ने यहाँ पे जीत लिया है। ये बैलन डियोर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इस प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, एंड 1956 से ये अवार्ड प्रेजेंट करते आ रहे हैं। पास्ट सीजन में जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं और जिनकी बेटर अचीवमेंट होती है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेसी एंड बॉनमाती, इनको यहाँ पे बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित करा गया है या इन्होंने जीता है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेसर सारंग दियो, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जो कि WHO के द्वारा सेटअप किया गया है। ये 15 मेंबर की एक कमेटी रहेगी। एंड इस 15 मेंबर की कमेटी को जो हेड करेंगे वो कौन रहेंगे? जो इस 15 मेंबर की कमेटी को हेड करेंगे वो है एथल लियोनर माइकल। करेक्ट, ये यहाँ पे हेड करेंगे इस 15 मेंबर की कमेटी जो WHO के द्वारा सेटअप की गई थी। एंड ये एक स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है फॉर ट्यूबरक्लोसिस, WHO के द्वारा सेटअप किया गया। 15 मेंबर का ये एक्सपर्ट ग्रुप रहेगा। ठीक, चलिए, और TB जो होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करती है एंड ये कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑथर चेतन भगत, इनको नेम किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए? ऑफर टेक स्टार्टअप जो कि है हेनरी हार्विन एजुकेशन। हेनरी हार्विन एजुकेशन के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं चेतन भगत। एंड हेनरी हार्विन एजुकेशन ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 800+ प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है फॉर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग दैट सर्व्स एज अ करियर एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। HHE प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट्स एंड कलीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड।
करेक्ट मार्क करेंगे चेतन भगत। और इनके कुछ वर्क्स देखें जैसे 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स एंड व्हाट अ यंग इंडियन वांट्स। HHE हायर हेनरी हार्विन एजुकेशन की बात करें तो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुणाल गुप्ता, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी, एंड 2013 से ये ऑपरेशन में। नेक्स्ट आ जाता है फिर मर्जर के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रूव्स द मर्जर विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये किसके होगा? अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1949। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्वायर करेगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टॉक ट्रांजैक्शन वैल्यू एट 4,411 करोड़ रुपीस के लिए। और ये जो मर्जर है इसका एम क्या रहेगा? ताकि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की रीच है ना वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो सके एंड दे कैन एंटर इनटू द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। ठीक, ये जो अमालगेशन है ये कब से इफेक्ट में आएगा? 1 Feb 2024 से दिस अमालगेशन विल बी इन अफेक्ट। चलिए फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? संजय अग्रवाल, जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर 1996 में इस्टेब्लिश किया गया। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें MD एंड CEO कौन है? राजीव यादव, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका, एंड 2017 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट, चाइना ने अप्रूव किया भी वर्ल्ड का पहला पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी। वर्ल्ड की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? किस स्टार्टअप के द्वारा? E-हैंग के द्वारा। और इनकी जो इस E-हैंग को दे रिसीव द टाइप सर्टिफिकेट फॉर E-हैंग 216S। ये नाम रहेगा इस फ्लाइंग टैक्सी का, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी रहेगी एंड ये आपकी एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटी रहेगी, एयरक्राफ्ट रहेगा कि आपका जैसे हम हेलीकॉप्टर्स को वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंड कराते हैं ना, वैसे ही आपकी फैसिलिटी रहेगी इस फ्लाइंग टैक्सी की। चाइना के द्वारा अप्रूव की गई, स्टार्टअप जिसने लॉन्च की E-हैंग, और जो इस टैक्सी का नाम रहेगा वो क्या है? EH216S, और एक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक नए मशरूम स्पीशीज जो कि अभी डिस्कवर की गई वेस्टर्न घाट में, केरला में। साइंटिस्ट एट जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा यहाँ पर एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है मशरूम की, जिसका नाम है कैंडोलीमाइसिस अल्बोस क्वासमोस। राइट, ये नई स्पीशीज का नाम है मशरूम की, जो कि कहाँ पर अभी बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई। और कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में, और स्टेट का नाम पूछा जाए तो केरला में ये डिस्कवर की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन की। इनके द्वारा भी एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। पहले जो इनका रिकॉर्ड था वो था 2022 में, सबसे ज़्यादा विन्स थी, 15 विन्स जीती थी इन्होंने अपने करियर की। लेकिन अब 2023 में इन्होंने क्या किया? 16 विक्ट्रीज यहाँ पे इनको देखने को मिली हैं, विनिंग रेसेस इन सीजन इन अ सिंगल सीजन। तो सबसे ज़्यादा 16 विन्स का इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे अभी सेटअप कर दिया इन अ पर्टिकुलर सीजन मैक्स वर्स्टैपेन ने। और इन्होंने अभी क्या जीता? मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीत के ये रिकॉर्ड सेट कर लिया है। करेक्ट, और ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विन रहेगी मैक्स वर्स्टैपेन की फॉर दिस मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में, 22 में और 23 में, तीनों बार इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपेन की ये 16वीं विन थी, राइट, आउट ऑफ 19 रेसेस ऑफ 2023, जिससे इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, मैक्सिकन डच ये आपके रेसर रहेंगे। और अगर मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट पर, लुइस हैमिल्टन सेकंड पर और चार्ल्स लेस्लर थर्ड पोजीशन पर। फिर इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। और यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड सरदार, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। करेक्ट, एंड क्यों बोलते थे इनको? बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग नेचर। करेक्ट, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड इस साल इनका 148 बर्थडे हमें देखने को मिला, बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली। ये इंडिया के पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, चलिए
नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को। एंड रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, करेक्ट। और आपके कैसे हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 31 अक्टूबर को 10th वर्ल्ड सिटीज़ डे हमने ऑब्जर्व किया, 10वां एडिशन, जिसकी थीम थी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सिटीज़ डे की, जो 31 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व करा। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया ये डेट? 2014 में। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड सेविंग्स डे। 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग्स डे, जिसकी थीम है कॉन्कर योर टुमारो। कॉन्कर योर टुमारो ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सेविंग्स डे की, ताकि जो सेविंग्स है उसकी अहमियत बताई जा सके एंड लोगों को अनसेबल फॉर सब्सटेंस, मतलब अनसेबल जो आपके फ्यूचर आप कोई भी समस्या आ सकती है, राइट, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, इसलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग्स डे। एंड वर्ल्ड सेविंग्स डे हम 30 अक्टूबर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंडिया ऑब्जर्व्स वर्ल्ड सेविंग डे ऑन 31 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है हमारे डेथ एनिवर्सरी होती है इंदिरा गांधी जी की, जो कि 3rd फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, और उनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। एंड थीम हम देख ही चुके हैं, थीम क्या है? कॉन्कर योर टुमारो। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 1924 में ऑब्जर्व किया गया था 31 अक्टूबर को, और इंडिया में 30 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे, 27 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका एम क्या है? टू प्रमोट द मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? ये क्लाइंट सेंट्रिक हेल्थ प्रोफेशन है जो प्रमोट करता है हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू वर्क, करेक्ट। एंड इसकी थीम क्या है रखेंगे यार? यूनिटी थ्रू कम्युनिटी, आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस, इनको अभी प्रेजेंट किया गया है इनॉग्रल अवार्ड, जो कि है दुर्गा भारत सम्मान से, ठीक है, दुर्गा भारत सम्मान से सीवी आनंदा बोस को सम्मानित किया गया, जो कि गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, करेक्ट। एंड इसी इवेंट के दौरान इनको मिशन काला क्रांति, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो प्रमोट करता है आर्ट एंड कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया। एंड फिर यहीं पे याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने ऑर्गेनाइज कराया दुर्गा पूजा कार्निवल, जो शोकेस करता है आइकॉनिक आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा, 27 अक्टूबर को रेड रोड में कोलकाता वेस्ट बंगाल पर, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन बीइंग ताकि इट मार्क्स द वननेस ऑफ ग्रोथ एंड नेशनलिज्म इन मणिपुर एंड टू सेलिब्रेट द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, जो कि है भाईचारा, लव एंड यूनिटी, इसलिए ये मेरा हाउ चोंगबो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। 16th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। UNCCD का डाटा आया और इंडिया लॉस्ट ओवर 30.51 मिलियन हेक्टेयर ऑफ हेल्दी लैंड टू डिग्रेडेशन फ्रॉम 2015 से 2019। USISPF ने ऑनर किया नीता अंबानी को विद ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 67th बैलन डी'ओर अवार्ड अर्जेंटीना के लायनल मेसी को मेंस कैटेगरी में, और ये इनका 8वां बैलन डी'ओर अवार्ड रहेगा। और बॉन माती को वीमेन बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन प्रोफेसर सारंग दियो ऑफ ISB अपॉइंटेड एज WHO's एडवाइजरी ग्रुप एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी ग्रुप, जो कि एक 15 मेंबर का एडवाइजरी ग्रुप रहेगा, WHO के द्वारा सेटअप किया गया। एंड ये एडवाइजरी ग्रुप किस पर है? ट्यूबरक्लोसिस पर। देन चेतन भगत इनको नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन। देन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बी मर्ज्ड विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इन ऑल शेयर डील। नेक्स्ट, चाइना ने अप्रूव किया वर्ल्ड का पहला पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी ईहैंग EH216S। देन कैंडोलोमाइसिस, ये एक नई मशरूम की स्पीशीज है जो डिस्कवर की गई थी फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन केरला। रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने अभी F1 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया 2023 के लिए। नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं, 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड सेविंग्स डे 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे 27 अक्टूबर को। वेस्ट बंगाल के गवर्नर आनंदा बोस, इनको अवार्ड दिया गया, इनको अवार्ड किया गया विद इनॉग्रल एडिशन ऑफ दुर्गा भारत सम्मान अवार्ड। एंड मणिपुर ने सेलिब्रेट किया अभी मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, ठीक है।
जो कि एक यूनिटी ऑन वननेस को बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ पुराने दिन एंड पुराने वीक के इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की, राइट, GMIS। इसका भी हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था। लोकेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर हुई थी ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो मुंबई में हमें देखने को मिली थी। एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, यहाँ पे इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर या फिर हम बोलें ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, काफ़ी सारे MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे जो ग्लोबल समिट है, हम बात करें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अगर इसी की बात करें सबसे पहले, इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमृत काल विजन 2047 को लॉन्च किया, क्योंकि हम जानते हैं 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस को। एंड यहाँ पर इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को या फिर इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने की बात की गई। एंड इसी समिट के दौरान 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब इसमें हम देखेंगे ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट थी, 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स जो मेन रहेंगे वो आपको याद रखने हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फिक्की के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे PM मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, करेक्ट, ताकि पोर्ट्स की अगर बढ़ेंगे, पोर्ट्स अच्छे डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी। फिर यहीं पे PM मोदी ने बात करी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस की, जो कि कहाँ पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में कहाँ पर होंगे, मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में। एंड यहीं पे PM मोदी ने बात की नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की, कहाँ पर, लोथल में, करेक्ट। फिर इसके अलावा याद रखेंगे सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा यहाँ पे बायलेटरल मीटिंग्स की गई इटली, टेंजानिया एंड श्रीलंका के वेरियस मिनिस्टर्स के द्वारा, ताकि मैरीटाइम कॉपरेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। और इस GMIS ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान 360 से भी ज़्यादा MOUs यहाँ पर साइन किए गए हैं 8.35 लाख करोड़ की लागत के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। स्मार्ट पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाएंगे, डिजिटल इंडिया की मदद से इन पोर्ट्स को स्मार्ट बनाया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा। फिर इसी के अलावा हरित सागर की जो हमारा गाइडलाइंस हैं, हरित सागर क्या है, ये वो गाइडलाइंस है जो कि किसी पोर्ट को ग्रीन बनाती है, मतलब रिड्यूस वेस्ट, रीयूज वेस्ट, उस वेस्ट को रिपर्पस करना, राइट, जीरो टू वेस्ट डिस्चार्ज की तरफ लेके जाता है हरित सागर। मार्क करके चलेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर याद रखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो कि लॉन्च की गई थी। एंड इसके यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग MOU, 360 MOU साइन किए गए। 3rd एडिशन था, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिली। एंड ये ऑर्गेनाइजर कौन थे यहाँ पे, जैसे हमने अभी देखा, 3 ऑर्गेनाइजर्स याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड फिक्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, 1st एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन बोले, किसका, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। ये कब हुआ, 21 एंड 22 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था इंडिया का पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। 21-22 अक्टूबर को हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया USI के द्वारा। USI क्या आपका, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राई सर्विस थिंक टैंक है, 1870 से ये वर्किंग है, करेक्ट। एंड इनके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। कहाँ पर हुआ, लोकेशन आ जाए तो मानेकशा सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पर हमें ये देखने को मिला। एंड इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज या इनॉग्रेट करा गया। 2 दिन लंबा ये फेस्टिवल था। एंड यहाँ पर मिलिट्री कल्चर के बारे में एंड जो हेरिटेज है इंडिया का, मिलिट्री से रिलेटेड जो कल्चर्स है, मिलिट्री से रिलेटेड जो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। फिर यहीं पे एक आ जाता है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है कि अपनी एंशियंट स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे बढ़ावा देना इन द मिलिट्री डोमेन एंड फॉरेन पॉलिसीज को ना इंक्लूड करके हमारा जो इंडिया का कल्चर है, जो हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी हिस्ट्री में जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, उसको सामने लाने की यहाँ पे बात की गई है। एंड उसको हमारी डिफेंस फोर्सेज के जो भी करिकुलम है या फिर जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उसमें इंप्लीमेंट करने की बात की गई। ये है आपका प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव, राइट, प्रोजेक्ट उद्भव याद रखेंगे।
ठीक है। और अगर बात करें फिर यूएसआई की, यूएसआई क्या था अभी हमने देखा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, मेजर जनरल बीके शर्मा, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं आईसीएआई। आईसीएआई के द्वारा अभी रिसेंटली एक यूएन का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, वो है आईएसएआर ऑनर्स। ये अवार्ड क्यों दिया गया है, पहले तो याद रखेंगे, छठा एडिशन अवार्ड दिया गया है। एंड इनको क्यों सम्मानित किया गया आईसीएआई को, क्योंकि ये जो आईएसएआर अवार्ड है ना, बेसिकली ये किस लिए होता है, ताकि जो आपके 2030 में हम जानते हैं हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट। तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट देने के लिए कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, कौन सी कंट्री अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, क्या वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस बनाने के लिए आईसीएआई को यहाँ पे ऑनर किया गया आईएसएआर ऑनर्स 2023 अवार्ड से। आईएसएआर की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एंड इसका छठे एडिशन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली, वो रहेगा आईसीएआई। ये जो इनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया ना, ये प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम अभी अबू धाबी यूएई में थी 16 से 20 अक्टूबर के बीच में। एंड यहीं पर आप थीम याद रखेंगे इसकी, जो कि है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम आईएसएआर ऑनर्स की बात करें तो ये पहले सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका एम क्या, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग करना अबाउट द अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम 2030 तक अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट को रिसेंटली सम्मानित किया गया, या फिर दे हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द यूएन प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। यूएन प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किनको सम्मानित किया गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को, वो रहेगी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनको सम्मानित किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के बेस्ट अवार्ड से, या फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल के हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन अवार्ड से, जो कि है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड। आई रिपीट, द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड, ये आपका हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो अभी किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को, राइट। और ये 2022 के लिए है, ठीक है। दिसंबर 2022 में इनको अनाउंस किया गया था एज द रेसिपिटेंट ऑफ द अवार्ड, और अभी इनको सम्मानित किया गया। सिमिलरली 2023 के अवार्ड से कौन रेसिपिटेंट रहेंगे, वो है डाना रेमस, और इनको भी सून इस अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा, करेक्ट। सो कमिंग बैक, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। एंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहाँ पर है, यूएसए में। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे केयर एंड सपोर्ट। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को। एंड जो हमारे एल्डरली पीपल्स को ज़रूरत है केयर की, राइट, एंड उनको हेल्प कर सके, उनको अलग अलग डे टू डे लाइफ में जो भी केयर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ पे वेरियस पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इसका पहला एडिशन है, याद रखेंगे 2023 में, या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट का, फॉर जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अक्टूबर को, करेक्ट। और पहली बार ऑब्जर्व किया गया है ये आपका 2023 में। नेक्स्ट आ जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक। आई रिपीट, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे प्रमोट की जा सके, करेक्ट। एंड जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, करप्शन होता है, उनको यहाँ पर रोका जा सके, राइट। तो यहीं पे आप थीम भी इसी से रिलेटेड देखेंगे, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, ये आपकी थीम रहेगी विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं चाइना के फॉर्मर प्रीमियर ली कीकेंग, इनका रिसेंटली निधन हो गया 68 की एज में इन शंघाई चाइना। और ये यहाँ पे प्रीमियर थे ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फ्रॉम 2013 टू 2023, करेक्ट। एंड इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर।
वर्ल्ड स्ट्रोक डे, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रोक आ जाता है, इससे लोगों की जान चली जाती है। इवन अभी हम देख रहे हैं आज के टाइम पे जो यंगस्टर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो वो डेली बेसिस पे उनकी रहती है, उनका डेली अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बेसिस पे। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हों एंड लोग अच्छी हेल्थ मेंटेन करें एंड इसका सीरियस जो रेट है, वो नेचर है, उसको यहाँ पे उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। तो थीम याद रखेंगे, टुगेदर वी कैन हैशटैग ग्रेटर देन स्ट्रोक। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्ट्रोक डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को। करेक्ट। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2006 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी इज सेट टू या विच कंट्री इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ग्लोबली बाय 2050? तो इसका तो आंसर होगा, याद रखेंगे, इंडिया। टॉप पर चाइना, यूएसए एंड फिर इंडिया आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। करेक्ट। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बन जाएगा इंडिया बाय 2050। इसी ये जो डाटा रिलीज किया गया, कहाँ पे रिलीज किया गया? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में। ठीक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज किसके द्वारा किया गया? आईईए के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसी रिपोर्ट के अंदर काफी अलग चीज भी बताई गई, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फॉसिल फ्यूल का यूसेज है ना, का जो यूज है, उसकी जो पीक हम अचीव कर लेंगे अभी 2025 में। कोई भी नया फॉसिल फ्यूल का प्रोजेक्ट अब इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, स्टार्ट नहीं किया जाएगा। एंड जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 टाइम्स हमें देखने को मिलेगी बाय 2030। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 2050 तक हमें नेट जीरो एमिशंस को अचीव करना है। तो ये कुछ आपके इंफॉर्मेशन थी जो कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में रिलीज की गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। आईईए की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पे? फातिह बिरोल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इन द मंथ ऑफ नवंबर इन 1974। राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है विल बी ग्रोइंग बाय 5% एनुअली एंड ये इसको थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बना देगा बाय ग्लोबली बाय 2050 आफ्टर चाइना एंड यूएसए। नेक्स्ट, विच कंट्रीज हैव बीन रिसेंटली रिलीज्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो किन कंट्रीज को भी रिसेंटली रिलीज कर दिया गया फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? FATF क्या होता है? ये एक टेरर फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह चेक उन टेरर फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंट्रीज पर चेक रखती है। राइट। जो भी आपका पैसे का इधर उधर गलत यूज हो रहा है उस पर ये FATF चेक रखती है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है एंड जो एक्टिविटीज होती है मनी लॉन्ड्रिंग की उस पर ये चेक रखती है FATF। इन्हीं के द्वारा ये ग्रे लिस्ट रिलीज की गई थी। ग्रे लिस्ट क्या है? ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जो कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। राइट। जो पैसा टेररिज्म की तौर पर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता है, उन कंट्रीज को इस लिस्ट में डाला जाता है। और जो भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी बैंक के द्वारा फंडिंग नहीं मिलती है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्रीज को भी रिलीज किया गया या फिर रिमूव किया गया, रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो ये वो चारों कंट्रीज हो जाएंगी, केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन एंड अल्बेनिया। इन चारों कंट्रीज को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको ऐड किया गया? एडेड टू द ग्रे लिस्ट। विच कंट्रीज एडेड टू द ग्रे लिस्ट? क्या नाम है उस कंट्री का जिसको अभी ग्रे लिस्ट में ऐड करा गया था? तो वो कंट्री कौन सी रहेगी? बुल्गारिया। बुल्गारिया वो आपकी कंट्री रहेगी जिसको अभी ऐड किया गया टू द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू FATF, केमन आइलैंड्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम द FATF's ग्रे लिस्ट एंड पनामा, जॉर्डन एंड अल्बेनिया वर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम FATF's ग्रे लिस्ट, वेयरएज बुल्गारिया वाज एडेड टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। और FATF क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। नेक्स्ट, 3 इंडियन एक्सपर्ट्स को अभी
अपॉइंट किया गया टू द यूएन्स न्यू एआई एडवाइजरी बॉडी। इस जो ये यूएन की नई एडवाइजरी बॉडी फॉर्म की गई है ना, ये 39 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी फॉर्म की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। न्यूयॉर्क में इसे सेटअप की गई थी। तो आई रिपीट, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स, इन्होंने भी फॉर्म की 39 मेंबर की हाई लेवल मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो 3 इंडियंस यहाँ पे हैं वो कौन हैं, उनके नाम रहेंगे अमनदीप सिंह गिल, नजनीन रजानी एंड शरद शर्मा। राइट, तो याद रखेंगे अमनदीप सिंह गिल, नजनीन रजानी एंड शरद शर्मा। ये वो 3 इंडिविजुअल हैं, 3 इंडियन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया है टू द 39 मेंबर हाई लेवल मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि कैसे हमें आगे रेगुलेशंस लाने हैं, क्या क्या चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि एकदम मार्केट्स को डिसरप्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्टर को भी नेम किया एज द नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा एक्टर हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो है राजकुमार राव। ये वो एक्टर हैं राइट जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नेशनल आइकन, ताकि जो वोटर अवेयरनेस है वो ज़्यादा क्रिएट की जा सके। अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया था नेशनल आइकन फॉर द सेम रीज़न, ताकि वोटर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अराउंड इंडिया। फिर यहीं पे राजकुमार राव एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में जो ये एमओयू साइन किए या फिर ये जो टाई अप हुआ है, ये आने वाले 3 साल के लिए यहाँ पे ये टाई अप रहेगा। करेक्ट, ये एमओयू 3 साल के लिए रहेगा। फिर राजकुमार राव, ये इन्होंने अपनी करियर की एक्टिंग कब स्टार्ट करी थी, 2010 में, और इनको 2014 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो जो लीडिंग एज एविएशन प्रपल्शन इंजन्स, मतलब जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके इंजन्स को डेवलप करने के लिए कहां पर, बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड साफरान। हॉल तो हो गया इंडिया का, साफरान हो गई फ्रेंच बेस्ड मैन्युफैक्चर। इन दोनों के बीच में यहां पर अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ताकि जो कमर्शियल इंजन पार्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। कहां पर, बेंगलोर में। आई रिपीट, और ये कौन से इंजन्स बनाए जाएंगे, ये लीप इंजन्स को यहाँ पे बनाने की बात की गई। एंड लीप क्या है, लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन्स। करेक्ट, तो इसके लिए हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की कंपनी एंड साफरान जो फ्रेंच एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चर रहेंगे, इनके बीच में यहाँ पे एमओयू साइन किया गया ताकि इस लीप इंजन को डेवलप किया जा सके। देन अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो सीबी अनंता कृष्णन यहाँ के मैनेजिंग एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके पास एडिशनल चार्ज है। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में, 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर साफरान एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये जीन पॉल अलारी यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है, और पेरिस फ्रांस में याद रखेंगे 2024 के ओलंपिक गेम्स होंगे अगले साल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिर महात्मा अवार्ड्स के ऊपर। अभी रिसेंटली महात्मा अवार्ड्स फॉर इम्पैक्टफुल सीएसआर इनिशिएटिव्स के लिए किसको सम्मानित किया गया, वो है यूएसटी क्या है, ये एक लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी है। एंड इनको 2023 के महात्मा अवार्ड फॉर सीएसआर एक्सीलेंस इन कम्युनिटी सर्विस के लिए सम्मानित किया गया फॉर सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन इनका जो रहा एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लाइवलीहुड सेक्टर में, एनवायरनमेंट में, डिजास्टर में एंड रिलीफ सेक्टर में। एंड दूसरी बार इनको यहाँ पे इस महात्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहली बार 2022 में किया गया था और अब फिर 2023 में फिर से सम्मानित किया गया है महात्मा अवार्ड्स फॉर इम्पैक्टफुल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स फॉर सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, फिर यहीं पे एक इनिशिएटिव याद रखेंगे, यूएसएसटी का इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था अडॉप्ट अ स्कूल प्रोग्राम। ये क्या था, इसने इन्फ्लुएंस किया लाइव्स ऑफ मोर देन 32,000 स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड मैक्सिको। एंड यूएसटी सपोर्ट्स ओवर 104 स्कूल्स एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। करेक्ट, चलिए
फिर महात्मा अवार्ड्स, ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि इन पर्टिकुलर फील्ड्स में एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनसे काफ़ी लोगों की यहाँ पे लाइफ में चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट पर। अभी एसबीआई ने अपॉइंट किया है क्रिकेटर फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एमएस धोनी को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, राइट। एसबीआई ने इनको ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसके अलावा जियो मार्ट, ओरियो, इंडिया सीमेंट्स, देन ड्रीम 11, देन इसके अलावा गरुड़ा एरोस्पेस, करेक्ट। फिर आ जाता है टीवीएस मोटर्स, रीबॉक, एंड फिर अगर याद हो तो एक ट्रैक्टर था स्वराज ट्रैक्टर्स। इन सब के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे एमएस धोनी। नेक्स्ट, अगर एसबीआई की बात कर रहे हैं तो दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन, अश्विनी कुमार तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर। 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं कैटरीना कैफ, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, राइट। एंड इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है राडो का। राडो क्या है? ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड लग्जरी वॉच मैन्युफैक्चर है, ठीक है, राडो। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया गया। 2011 से ऋतिक रोशन भी यहाँ पर याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर है राडो कंपनी के। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं महाबली यार्ड 305 की। तो अभी याद रखेंगे कमांडर सुनील कौशिक ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट मुंबई, इन्होंने यहाँ पर अभी लॉन्च किया है 25T पोलार्ड पुल टग को, जिसका नाम है महाबली या फिर यार्ड 305 महाबली। इसको लॉन्च किया गया सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भरूच गुजरात में रहेगा। डायरेक्टली याद रखेंगे ये जो टग लॉन्च किया गया है यार्ड 305, इसका नाम रहेगा महाबली। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कमांडर सुनील कौशिक के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भरूच गुजरात में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। 84.75 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा, राइट। एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव मेक इन इंडिया जो है उसके अंडर इसको सेटअप करा जा रहा है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सेटअप की इज सेटिंग अप अ 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन चेन्नई तमिलनाडु? तो वो है एरिक्सन, राइट। एरिक्सन ये एक स्वीडिश टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है एंड इन्होंने अभी रिसेंटली सेटअप किया है 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर चेन्नई तमिलनाडु में। और याद रखेंगे ये एरिक्सन का तीसरा ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रहेगा जो कि तमिलनाडु में फोकस्ड होगा। और इसका जो मेन एम रहेगा वो क्या है? यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को लाना, ठीक। मार्क करेंगे, पहला जो सेंटर है वो कहाँ पे था? स्वीडन में, फिर यूएसए में, और अब चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में इसको सेटअप किया गया है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर 6G, दैट इज 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एरिक्सन ये क्या है? स्वीडिश टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनी है और इन्होंने 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने की बात की गई चेन्नई तमिलनाडु में। और जो एरिक्सन है इज ऑल्सो लुकिंग टू पार्टनर विद प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर 6G रिलेटेड रिसर्च। और जो ये 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इन इंडिया विल बी द 3rd सर्च सेंटर ऑफ एरिक्सन। और जो बाकी दो हैं स्वीडन एंड यूएसए में रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने होमवर्क सेक्शन पर। पहला, एज पर द रीसेंट स्टडी विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट इन द कंट्री। दूसरा, द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच करनाल जिसको हॉक सिस्टम बोला गया, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, राइट। किस रीजन से लॉन्च किया गया था हॉक, क्यों लॉन्च किया गया था और कहाँ लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। फुल फॉर्म क्योंकि यहाँ पे दे दी, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच करनाल। और तीसरा, आईफोन मेकर विस्ट्रॉन इन्होंने अप्रूव किया सेल ऑफ देयर इंडियन यूनिट टू विच इंडियन कंपनी। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। एंड मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो बच्चे वीडियो में आज पहली बार आए हैं, मैं उनको फिर सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और डेली बेसिस पे हमारी वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कि वो जाइए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase,
any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.